Hello बच्चों, welcome to the online session of Spectrum Academy regarding NDA preparation for the subject physics. In previous lectures, we have seen what do you mean by electrostatic, what are the different concepts like Coulomb's law, permittivity, electric field, electric lines of force and electric dipole. ये जो टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया. Now in today's lecture, we will see what do you mean by electrical potential energy, what do you mean by capacitor, and the capacitor energy, that means the electrostatic energy in the capacitor. So, we will start our lecture with a discussion of some previous terms. So, let us recapitulate the important things from the last lecture, what we have seen in the last lecture. In last lecture, so recapitulate from the previous lectures, some important topics, some important terms from the last lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है और दोनों में अगर डिस्टेंस R होता है तो एक कूलम फोर्स लगता है, वो दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये होता है कूलम्स फोर्स. उसके बाद में हमने देखा कि अगर दो चार्जेस है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कुछ फोर्स से अट्रैक्शन कर रहा है, यानी एक चार्ज उसके एनवायरनमेंट में आसपास सराउंडिंग कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. और फिर हमने दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरली द कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज. अगर Q1 चार्ज है, उसके आसपास में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे एक्ट हो रही है, ओके, कुछ इंटरेक्शन हो रहा है Q2 का उस इलेक्ट्रिक फील्ड से. So the electric field due to first charge is given by at the electric field due to first charge at position where the Q2 is placed. So electric field on the Q2 due to the first charge is given by E1 equals to their force of attraction, Coulomb force और repulsion per unit charge. किस पर देखनी है? Q2 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो फिर मैं क्या कर लूंगा? So E1 equals to FC upon Q2. So अब FC का वैल्यू हमें पता है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. But upon Q2, so upon Q2, so Q2 get cancelled. So the electric field due to the first charge is given by 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R square. From this thing we can see that the electric field is inversely proportional to R square. Here we can see the electric field is inversely proportional to the R square. In next topic we have seen what do you mean by electrical dipole. Dipole में हमने देखा कि अगर ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है और दोनों में डिस्टेंस अगर 2L है, तो डाइपोल मोमेंट दिया जाता है इक्वल्स टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस 2L और उसकी डायरेक्शन होती है -Q टू प्लस Q और रिप्रेजेंट किया जाता है P से. P यानी डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन होते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इसके साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है. अब लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है, goes away from positive charge and goes towards to the negative charge. And we have seen many different concepts which are important in the topic. So now we will see the next upcoming topic, and the topic name is electric potential. Now what do you mean by electric potential? ये जो electric potential होता है, ये electric potential क्या होता है? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फर्स्ट वाली. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज द नथिंग बट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वेयर E is the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल V ये क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So electric field is the negative derivative with respect to distance of some
function and that function is called as electric potential. यहाँ पर ये V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब मैंने देखा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो वी हैव E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr. Then from this we can get dV equals to minus E dr. Now this is the small variation. We have to find the total electric potential. अब फिर मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा. So the total potential equals to integration of dV. That means integration of minus E into dr. ऐसे दिया जाएगा. अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है. अब ये इक्वेशन मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सो मुझे पता है, सो V पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr. बट ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज इज गिवन बाय 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. चार्ज अपॉन r स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है. अब वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो वो चार्ज का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सो आइए हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E का वैल्यू में डाल दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr. नाउ दिस टर्म इज कांस्टेंट, q इज आल्सो कांस्टेंट, सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q एंड इंटीग्रेशन ऑफ r रेज़ टू -2 dr. दिस इज V. अब इंटीग्रेशन r रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन आएगा r रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. बिकॉज इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, r रेज़ टू n dr इज इक्वल्स टू r रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अगर ये फॉर्मूला डाल दिया जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाता है. तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम डाल देंगे r रेज़ टू -2 प्लस 1, दैट इज r रेज़ टू -1 अपॉन -1. सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q अपॉन दिस इज r रेज़ टू -1, दैट मींस 1 अपॉन r. सो ये आ जाएगा पोटेंशियल. So the potential due to charge q at some distance r is given by 1/4 pi epsilon naught q upon r. यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एमसीक्यू एग्जाम. सो v is inversely proportional to 1/r. So v is inversely proportional to r and electric field is inversely proportional to the square of the distance. ये जो है v is the potential difference. तो हमने यहाँ से देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये क्या आ जाता है? पोटेंशियल आ जाता है, और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब ये तो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई चार्ज है वो पोटेंशियल आसपास पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, यानी उस चार्ज के पास कुछ पोटेंशियल की एनर्जी, कुछ एनर्जी, ऑब्जेक्ट को एनर्जी हो जाती है, राइट? सो उसके पास कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी क्या होता है. So, what do you mean by electrical potential and what do you mean by electrical work done? First of all, electrical potential, जैसे अभी मैंने देखा कि electrical potential का यही एक फॉर्मूला आ जाता है. electrical potential कैसे दिया जाता है हमने ये लास्ट टॉपिक में देखा कि electrical potential यानी so E electric field equals to minus dV upon dr. So negative gradient of पोटेंशियल होता है, वहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके मैंने क्या किया? पोटेंशियल फाइंड आउट किया. लेकिन पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला आ जाता है कि जैसे पोटेंशियल माने क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी होता है कि वो चार्ज को कितना वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब पोटेंशियल यानी क्या हो जाता है? सो पोटेंशियल इज द वर्क required to displace the charge from infinity to given point.
इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर मुझे लाना है, जो मैं मेहनत कर सकता हूँ, जो वर्क कर सकता हूँ फॉर गिवन चार्ज, वो चार्ज के लिए, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एनडीए एग्जाम। सो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव। अब ये चार्ज इनिशियली एकदम, ये जो इनिशियली Q2 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये काफी, इससे काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस पे था, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। अब जैसे जैसे मैं उससे Q1 चार्ज की ओर लेकर आ रहा हूँ, प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्शन। ये इसे क्या करेगा, रिपल करेगा कि भाई तू मेरे पास मत आ, लेकिन मैं एक्सटर्नल कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एक एक्सटर्नल एजेंसी, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, कि मैं बोल रहा नहीं नहीं वो तो बोल रहा है तू उसके पास मत जा, लेकिन मैं फिर भी इसे Q2 को इसकी ओर लाने के लिए देख रहा हूँ, और ये कुछ पोजीशन है, यहाँ पर मुझे उससे स्टेबल करना है। तो ये जो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ इनफाइनाइट से टू द गिवन पॉइंट, कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ, किस पर वर्क कर रहा हूँ, ये चार्ज पर Q2 पर वर्क कर रहा हूँ। सो दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल, कितना मुझे पोटेंशियल लग रहा है, कितना वर्क डन मैं कर रहा हूँ फॉर गिवन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जनरली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमें पता होना चाहिए। सो अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये जो है इसे हम यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये होता है पोटेंशियल। तो हमें यहाँ पर पता है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। अब मेरे पास यहाँ Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज को मुझे इसकी ओर लाना है। सो पोटेंशियल, अब पोटेंशियल, सो पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q2। सो वो Q2 चार्ज को क्या करूंगा, मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, इसके पोटेंशियल फील्ड में लाने के लिए जो मेहनत कर रहा हूं उसे हम, इसका क्या कहेंगे, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ऑफ Q1 इज नथिंग बट द वर्क डन, ये वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द, ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उस फील्ड में ले जाने के लिए, सो वर्क डन पर Q2। बट यहां से वर्क डन क्या आ जाता है, सो वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ Q1 इनटू Q2। बट पोटेंशियल ऑफ Q1 क्या होता है, ये हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये लास्ट टॉपिक में देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जस्ट डिस्टेंस, इनटू क्या है Q2। सो वर्क डन क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये हो जाता है फाइनल वर्क डन। अब वर्क डन यानी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये तो हमें पता है, फिजिक्स का फंडामेंटल रूल ही है। वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन एनर्जी। अभी आप पोटेंशियल या कुछ मोमेंट हमने किए नहीं ज्यादा, so ये पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज जनरली नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। सो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय U, E यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, U यानी पोटेंशियल एनर्जी, बट विच इलेक्ट्रिकल, इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर दो चार्ज दिए हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। या भी हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जस्ट ओनली R, ये भी एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हो जाती है। So potential energy is inversely proportional to just only R. So these are the important topics which we have to see. Now in the next topic we will see what do you mean by capacitor. अब ये capacitor क्या होता है? So this is nothing but the entirely different concept capacitor. अब जैसे फैन होते, फैन रोटेट करते, उसमें एक कैपेसिटर कंडेंसर होता है, हमने देखी होगी, ऐसे एक व्हाइट कलर की कुछ डिब्बी होती है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर टू, उसका वर्क क्या है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर करेगा। अब कैसे, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब मैंने एक प्लस चार्जेस की प्लेट लिया और ये प्लस चार्जेस की प्लेट मेरे पास है, राइट। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो प्लेट है, ये थिन प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
उसके पास मैंने एक मेटल प्लेट लाई। अब ये मेटल प्लेट यहाँ पर तो क्या है, पूरे पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये अंदर बाहर से सब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये जो प्लेट है, ये जो दूसरे मेटल प्लेट है कंडक्टर है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब फिर ये मटेरियल के अंदर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या आ जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब वो सरफेस पे आ गए तो सरफेस के नीचे सब कौन से पॉजिटिव चार्ज सरफेस के नीचे चले गए, ऊपर क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये इसे खींच लिया। सो इसके बाहर क्या चले गए, पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब मैंने क्या किया, इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक वायर ज्वाइन किया और उसे अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग करता हूं मैं, जैसे हम घरों में अर्थिंग करते। अब ये अर्थिंग में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये सब पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, यहां से सीधे ये अर्थिंग में चले जाएंगे, ये यहां से सीधे अर्थिंग में चले गए। अब ये अर्थिंग में चले गए तो मैंने देखा मेरी फिगर कैसी तैयार होगी, यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे प्लेट पे, और ये जो प्लेट है यहाँ से अंदर से कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और इधर के सब पॉजिटिव चार्ज चले गए। अभी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ये ई बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस डी, कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी पे हमने ये रखी हुई है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो गई है। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया, वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। सो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, सपोज वो पोटेंशियल आ जाता है V, राइट, ये पोटेंशियल आ जाता है V, और ये चार्जेस जो है ये Q चार्जेस है। अगर मैं ये Q चार्जेस, इस पे के चार्जेस अगर बढ़ाता हूं तो इस पे के भी चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्शन के वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो चार्जेस पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। अगर ये मैं बढ़ा रहा हूं तो ये चार्जेस पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट। सो मुझे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, V माने पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। फिर मैंने क्या किया, Q इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल रख दिया, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये जो कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी वाला कांस्टेंट है। और ये क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है, चार्ज है, ये कांस्टेंट है कुछ प्रोपोर्शनलिटी वाला कांस्टेंट। अब ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहेंगे कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि वो कैपेसिटर, ये देखो ये डिब्बी के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इधर भी नहीं, लेकिन वो डिब्बी के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यहाँ भी चार्जेस, यहाँ चार्जेस स्टेबल है, स्टोर किया इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्टोर किया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट किया। सो इसे हम कहते हैं कैपेसिटर। तो यहां से हम क्या पता चलता है, सो Q इज, तो फर्स्ट इन कैपेसिटर में अगर Q इज द चार्ज, Q इज योर चार्ज, V is your potential, then Q is directly proportional to V and Q equals to CV, where C is the constant of proportionality and C is also called as capacitance or capacity of capacitor। वो अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहेंगे। So C is the capacitance and capacity। So ये हमें पता होना चाहिए कि Q इक्वल्स टू होता है CV, बट C इक्वल्स टू आ जाता है Q अपॉन V। So Q का यूनिट आता है कूलम एंड V का यूनिट आता है वोल्ट। So कूलम पर वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। बट फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि कूलम पर वोल्ट बोलना है तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली फैराड। सो C का SI यूनिट है फैराड और उसे F से डिनोट किया जाता है।
मीन्स 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को नाम दिया हमने फैराड, फैराडे साइंटिस्ट। सो दिया जाता है कैपिटल एफ। सो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज कैपिटल एफ। सो फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ये होता है सब कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में भी हम देखते हैं, अगर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, यानी यहां पर एक प्लेट है, उसका एरिया A है, यहां पर एक प्लेट है, उसका एरिया A है। सो A is the area, cross area of plate, parallel plate capacitor. So plate है, यहाँ पर चार्जेस है प्लस क्यू सब, यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ गई, E is the electric field. So E is your electric field, electric field. अब वो दो प्लेट में कुछ डिस्टेंस है D, D is the distance between plate, D is the distance between plate, and V is the electrical potential. V is the electrical potential. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाती है, माइनस dV अपॉन dr, ये तो बताया। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने कह दिया कि ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो V is the potential difference. So dV upon dr. So मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, V कंसीडर कर रहा हूँ अपॉन डिस्टेंस, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी डिस्टेंस, dr मींस डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट का d, सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू V अपॉन d। सो यहाँ से हमें क्या देख सकते हैं, सो V इक्वल्स टू ED, ये भी हमें देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल द थिंग्स, बट अब साथ में मुझे पता है Q इक्वल्स टू होता है CV। सो कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन V। सो Q, V का वैल्यू है ED। सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज Q अपॉन E इंटू D। Q अपॉन E इंटू D, ये होती है कैपेसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस कैपेसिटर की, अगर वो मुझे पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो वैल्यू डालकर मैं और इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर न्यूमेरिकल्स में PYQ में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब मैं बताऊंगा कि इस पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम काट सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे करना है हम। सो E का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सो दैट्स ऑल। सो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, सो Q अपॉन ED, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि यह पैरेलल प्लेट है। अगर मैंने यहाँ कुछ स्पीयर ले लिया तो स्पेरिकल कैपेसिटर होगा, यानी ये स्पीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक अलग स्पीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट, एक पे प्लस चार्ज चाहिए, दूसरे पे माइनस क्यू, प्लस चार्ज माइनस क्यू, स्पेरिकल कैपेसिटर आ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। देन कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, अब इसके हमें हमारे लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। सो आई विल प्रोवाइड ओनली ट्रिक्स। अगर दो कैपेसिटर है, जैसे रेजिस्टेंस होते हैं वैसे, अगर दो कैपेसिटर ये सीरीज में ज्वाइन किए, सीरीज में ज्वाइन की, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, then if CS is the resultant capacitance of series combination, then हमारे लिए फॉर्मूला आता है 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का ये फॉर्मूला आता है, यहाँ पर कैपेसिटर इन सीरीज का ये फॉर्मूला आता है। सो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन में प्रूव नहीं करूंगा अब, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ये इस पे सिर्फ क्वेश्चंस क्या आता है एनडीए में, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल। सो हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सो यहाँ से हम CS कैलकुलेट कर सकते हैं। सो CS इज द रिजल्टेंट कैपेसिटर। ये कब, अगर कैपेसिटर इन सीरीज में होगा तो। अगर कैपेसिटर, अगर हमारे सब कैपेसिटर इन पैरेलल में है,
सो हाउ टू डू द कैपेसिटेंस इन पैरेलल, यानी यहाँ पर एक कैपेसिटर है, उसका C1 ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, उसका C2 ये कैपेसिटेंस है, और ये पैरेलल में ज्वाइन किए और नीचे सर्किट में हमने ये ज्वाइन कर दिए। ये बैटरी है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट से दिखाया जाता है, दोनों प्लेट सेम चाहिए, अगर एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी यानी ये बैटरी है। सो ये सिंबल ये है कैपेसिटर का, ये तो तुम्हें पता है। सो अगर ये पैरेलल में ज्वाइन किए जाए, सो इफ Cp इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा, तो यहाँ पर Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 दिया जाता है। जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में R1 प्लस R2 करते हैं, यहाँ पर पैरेलल में रिवर्स है, कैपेसिटर में पैरेलल में C1 प्लस C2 किया जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में, हम जब पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम ये देख सकेंगे। सो कैपेसिटर इन पैरेलल इज जस्ट गिवन बाय दिस। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसका सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर कैसे दी जाती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर, अगेन वी डोंट रिक्वायर डेरिवेशंस। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए सो आप कमेंट कर सकते हैं कि डेरिवेशन कैसे आया, और अगर आपको चाहिए तो आप ये क्लास ऑनलाइन जो लेक्चर से ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डेरिवेशंस कैसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस का है क्या है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक पर पीवाईक्यू लेने एनडीए के। सो अब हमें इस टॉपिक पे यहाँ पर डेरिवेशन के इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर इज गिवन बाय U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, वेयर C is the capacitance, V is the electrical potential and U is the electrostatic energy। 1/2 CV स्क्वायर से दिया जाता है। वो भी पता है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, सो C इक्वल्स टू Q अपॉन V आ जाएगा। सो ये अगर वैल्यू में यहाँ पर दूं, सो Q इक्वल्स टू 1/2 Q अपॉन V स्क्वायर, सो 1/2 QV ये हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, V इक्वल्स टू Q अपॉन C भी पता चलता है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, सो U इक्वल्स टू आ जाता है 1/2 देन C V स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, सो आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आ जाता है, और ये थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है। इन तीन फॉर्मूले पे काफी बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, कैपेसिटर पैरेलल क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, साथ में देखा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने रिकैपिचुलेट किया। So these all the things are very important regarding the NDA exam, and in the next session we will solve some PYQs, numericals on the electrostatics topic. So thank you.